हम पढ़ेंगे ड्यूट्रोनॉमी 13 चैप्टर, 14 चैप्टर, 15 चैप्टर। इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रिबांति खम्ब हुशकर खासे हिकब हुल्लराहा अखती नमरो खुता लरबाहा का सियांदुरा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए, हमारे जीवन को बदलने में आप हमारी मदद कीजिए। आप बढ़ते जाइए और ईश्वरीय रचना में हमको लेकर चलिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। Enticers to idolatry to be stoned to death without regard to nearness of relation. Idolatrous cities not be too spared. First verse. If there arise among you a prophet or a dreamer of dreams, and giveth thee a sign or a wonder, and the sign or the wonder come to pass, whereof he spake unto thee, saying, Let us go after other gods, which thou hast not known, and let us serve them. Thou shalt not hearken unto the words of that prophet or that dreamer of dreams, for the Lord your God proveth you to know whether ye love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Ye shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him. And that prophet or that dreamer of dreams shall be put to death, because he hath spoken to turn you away from the Lord your God, which brought you out of the land of Egypt, and redeemed you out of the house of bondage, to thrust thee out of the way which the Lord thy God commanded thee to walk in. So shalt thou put the evil way from the midst of thee. If thy brother, the son of thy mother, or thy son, or thy daughter, or the wife of thy bosom, or thy friend, which is as thine own soul, entice thee secretly, saying, Let us go and serve other gods, which thou hast not known, thou nor thy fathers, namely of the gods of the people which are round about you, nigh unto thee, or far off from thee, from the one end of the earth even unto the other end of the earth. Thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him, neither shall thine eye pity him, neither shalt thou spare, neither shalt thou conceal him. But thou shalt surely kill him. Thine hand shall be first upon him to put him to death, and afterwards the hand of all the people. And thou shalt stone him with stones, that he die, because he hath sought to thrust thee away from the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, from the house of bondage. And all Israel shall hear and fear, and shall do no more any such wickedness as this is among you. If thou shalt hear say in one of thy cities, which the Lord thy God hath given thee to dwell there, saying, Certain men, the children of Belial, are gone out from among you, and have withdrawn the inhabitants of their cities, saying, Let us go and serve other gods which ye have not known. Then shalt thou inquire, and make search, and ask diligently, and behold, if it be truth, and the thing certain that such abomination is wrought among you, thou shalt surely smite the inhabitants of that city with the edge of the sword, destroying it utterly, and all that is therein, and the cattle thereof, with the edge of the sword. And thou shalt gather all the spoil of it into the midst of the street thereof, and shalt burn with fire the city and all the spoil thereof, every whit for the Lord thy God, and it shall be an heap for ever, it shall not be built again. And there shall cleave not of the cursed thing to thine hand, that the Lord may turn from the fierceness of his anger, and shew thee mercy, and have compassion upon thee, and multiply thee as he hath sworn unto thy fathers, when thou shalt hearken to the voice of the Lord thy God, to keep all his commandments which I command thee this day, to do that which is right in the eyes of the Lord thy God. Chapter 14. God's children must not disfigure themselves in mourning, what may be eaten and what may not
of beasts, of fishes, of fowls, tithes of divine service, the third year's tithe of alms and charity. First verse say, Ye are the children of the Lord your God. Ye shall not cut yourselves, nor make any baldness between your eyes for the dead. For thou art an holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto himself above all the nations that are upon the earth. Thou shalt not eat any abominable thing. These are the beasts which ye shall eat, the ox, the sheep, and the goat, the hart, and the roebuck, and the fallow deer, and the wild goat, and the pigarg, and the wild ox, and the camels, and every beast that parteth the hoof, and cleaveth the cleft into two clouds, and cheweth the cud among the beasts that ye shall eat. Nevertheless, this ye shall not eat of them that chew the cud, or of them that divide the cloven hoof, as the camel and the hare and the coney. For they chew the cud, but divide not the hoof thereof, they are unclean unto you. And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean unto you. Ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcass. This ye shall eat of all that are in the waters, all that have fins and scales shall ye eat. And whatsoever hath not fins and scales ye may not eat, it is unclean unto you. Of all clean birds ye shall eat, but these are they of which ye shall not eat: the eagle, and the ossifrage, and the osprey, and the glade, and the kite, and the vulture after his kind, and every raven after his kind, and the owl, and the night hawk, and the cuckoo, and the hawk after his kind, the little owl, and the great owl, and the swan, and the pelican, and the gier eagle, and the cormorant, and the stork, and the heron after her kind, and the lapwing, and the bat, and every creeping thing that flieth is unclean unto you. They shall not be eaten. But of all clean fowls ye may eat. Ye shall not eat of anything that dieth of itself. Thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it, or thou mayest sell it unto them an alien, and for thou art an holy people unto the Lord thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk. Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed, that the field bringeth forth year by year, and thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose to place his name there, the tithe of thy corn, of thy wine, and of thine oil, and the firstlings of thy herds and of thy flocks, that thou mayest learn to fear the Lord thy God always. And of if the way be too long for thee, so that thou art not able to carry it, or if the place be too far from thee, which the Lord thy God shall choose to set his name there, when the Lord thy God hath blessed thee, then shalt thou turn it into money, and bind up the money in thine hand, and shalt go unto the place which the Lord thy God shall choose, and thou shalt bestow that money for whatsoever thy soul lusteth after, for oxen, or for sheep, or for wine, and for strong drink, or for whatsoever thy soul desireth, and thou shalt eat there before the Lord thy God, and thou shalt rejoice, thou and thine household. And the Levite that is within thy gates, thou shalt not forsake him, for he hath no part nor inheritance with thee. At the end of 3 years thou shalt bring forth all the tithe of thine increase the same year, and shalt lay it up within thy gates. And the Levite, because he hath no part nor inheritance with thee, and the stranger, and the fatherless, and the widow which are within thy gates shall come and shall eat and be satisfied, that the Lord thy God may bless thee in all the work of thine hand which thou doest. Chapter 15. Introduction.
The seventh year, a year of release for the poor. It must be no hindrance to lending or giving of Hebrew servants freedom. All firstling males of cattle to be sanctified unto the Lord. First verse, at the end of every 7 years thou shalt make a release, and this is the manner of the release. Every creditor that leadeth out unto his neighbor shall release it. He shall not exact it of his neighbor or of his brother, because it is called the Lord's release. Of a foreigner thou mayest exact it again, but that which is thine with thy brother thine hand shall release, save when there shall be no poor among you, for the Lord shall greatly bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee for an inheritance to possess it. Only if thou carefully hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all these commandments which I command thee this day. For the Lord thy God blessed thee, as he promised thee, and thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not borrow, and thou shalt reign over many nations, but they shall not reign over thee. If there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy gates in thy land, which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother, but thou shalt open thine hand wide unto him, and shalt surely lead him sufficient for his need in that which he wanteth. Beware that there be not a thought in thy wicked heart, saying, the seventh year, the year of release, is at hand, and thine eye be evil against thy poor brother, and thou givest him not, and he cry unto the Lord against thee, and it be seen unto thee. Thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grieved when thou givest unto him, because that for this thing the Lord thy God shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thine hand unto. For the poor shall never cease out of the land. Therefore I command thee, saying, thou shalt open thine hand wide unto thy brother, to thy poor, and to thy needy in thy land. And if thy brother, an Hebrew man or an Hebrew woman, be sold unto thee, and serve thee 6 years, then in the 7th year thou shalt let him go free from thee. And when thou sendest him out free from thee, thou shalt not let him go away empty. Thou shalt furnish him liberally out of thy flock, and out of thy flour, and out of thy wine praise of that wherewith the Lord thy God hath blessed thee, thou shalt give unto him. And thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt, and the Lord thy God redeemed thee. Therefore I command thee this thing today. And it shall be, if he say unto thee, I will not go away from thee, because he loveth thee, and thine house, because he is well with thee, then thou shalt take an awl, and thrust it through his ear unto the door, and he shall be thy servant forever. And also unto thy maidservant thou shalt do likewise. It shall not seem hard unto thee when thou sendest him away free from thee, for he hath been worth a double hired servant to thee, in serving thee 6 years. And the Lord thy God shall bless thee in all that thou doest. All the firstling males that come of thy herd and of thy flock thou shalt sanctify unto the Lord thy God. Thou shalt do no work with the firstling of thy bullock, nor shear the firstling of thy sheep. Thou shalt eat it before the Lord thy God year by year in thy place which the Lord shall choose, thou and thy household. And if there be any blemish therein, as if it be lame or blind or have any ill blemish, thou shalt not sacrifice it unto the Lord thy God. Thou shalt eat it within thy gates. The unclean and the clean person shall eat it alike, as the roebuck and as the hart. Only thou shalt not eat the blood thereof. Thou shalt pour it upon the ground as water. हम पढ़ेंगे हिंदी में.
व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 14 अध्याय 15 अध्याय। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 14 अध्याय 15 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। श्रीपान तिखाम्बरो खुश रखा सिराल बहु को सियांदुरा दहद उल्ल रहा हक किन खम्बरोहुशा। पहले वचन से, यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर कर, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, वे तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा, इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। यदि तेरा सगा भाई या बेटा या बेटी या तेरी अर्धांगिनी या प्राण प्रिय तेरा कोई मित्र निराले में तुझको यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना या पूजा करें, जिन्हें न तेरे पुरखा जानते थे, चाहे वे तुम्हारे निकट रहने वाले आस पास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक दूर दूर के रहने वालों के देवता हो, तो तू उसकी न मानना और न उसकी बात सुनना और न उस पर तरस खाना और न कोमलता दिखाना और न उसको छिपा रखना। उसकी अवश्य घात करना। उसको घात करने में पहला तेरा हाथ उठे, पीछे सब लोगों के हाथ उठे। उस पर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए, क्योंकि उसने तुझको तेरे उस परमेश्वर यहोवा से, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, बहकाने का यत्न किया है। हालेलुया। और सब इस्राएली सुनकर भय खाएंगे और ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच न करेंगे। आमेन। हालेलुया। 12 वचन से आगे, यदि तेरे किसी नगर के विषय में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने के लिए देता है, ऐसी बात तेरे सुनने में आए कि कितने अधम पुरुषों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को यह कहकर बहका दिया है कि आओ हम अन्य देवताओं की, जिनसे अब तक अनजान रहे, उपासना करें, तो पूछपाछ करना और खोजना और भली भांति पता लगाना। और यदि यह बात सच हो और कुछ भी संदेह न रहे कि तेरे बीच ऐसा घिनौना काम किया जाता है, तो अवश्य उस नगर के निवासियों को तलवार से मार डालना और पशु आदि उस सब समेत जो उसमें हो उसका तलवार से सत्यानाश करना और उसमें की सारी लूट चौक के बीच इकट्ठी करके उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मानो सर्वांग होम करके जलाना, और वह सदा के लिए डीह रहे, वह फिर बसाया न जाए और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ न लगने पाए, जिससे यहोवा अपने भड़के हुए कोप से शांत होकर जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी वैसा ही तुझसे दया का व्यवहार करे और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए। यह तब होगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों को मानेगा, और जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करेगा। शोक मनाने की वर्जित विधि 14 अध्याय पहले वचन से, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न भवों के बाल मुंडाना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। शुद्ध और अशुद्ध पशु 3 वचन से आगे, तो कोई घिनौनी वस्तु न खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वे
ये है, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हरिन, चिकारा, मृग, बनेली बकरी, सांभर, नीलगाय और बनेली भेड़। अतः पशुओं में से जितने पशु चीरे या फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं, उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले या चीरे खुर वालों में से इन पशुओं को अर्थात ऊंट, खरहा और शापान को न खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चीरे खुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर सुअर जो चीरे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो इनका मांस खाना और न इनकी लोथ छूना। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जितनों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस न खाना, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरर, गरुड़, चील और भांति भांति के शाही और भांति भांति के सब काग, शतुरमुर्ग, तहमास, जल कुक्कुट और भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू और घुग्गू, धनेश, गिद्ध, हड़गिल, सारस, भांति भांति के बगुले, हुदहुद और चमगादड़ और जितने रेंगने वाले जंतु हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध है। वे खाए न जाए, परंतु सब शुद्ध पंख वालों का मांस तुम खा सकते हो। जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम न खाना, उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को खाने के लिए दे सकते हो या किसी पराये के हाथ बेच सकते हो, परंतु तू तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। दशमांश का नियम। बीज के सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नये दाखमधु और टट के तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो और इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहाँ न ले जा सके, तो उसे बेच के रुपये को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वहाँ गाय, बैल या भेड़ बकरी या दाखमधु या मदिरा या किसी भांति के वस्तु क्यों न हो, जो तेरा जी चाहे उसे उसी रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना, और अपने फाटकों के भीतर के लेवियों को न छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश न होगा। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। 7वां वर्ष छुटकारे का वर्ष। 15 अध्याय पहले वचन से 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना, अर्थात जिस किसी ऋण देने वाले ने अपने पड़ोसी की कुछ उधार दिया हो वह उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी या भाई से उसे बरबस न भरवाए, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। परदेशी मनुष्य से तो उसे बरबस भरवा सकता है, परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा ही उसे तू बिना भरवाए छोड़ देना। तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश की तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तो उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएंगे।
जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसे अधम चिंता न समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा को दुहाई दे तो वह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तो उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। दासों से व्यवहार 12 वचन से आगे, यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रिन तेरे हाथ दी के और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। और जब तो उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे, तब उसे छूछे हाथ न जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाख मधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूँ, और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनंद से रहता हो, और इसी कारण तुझसे कहने लगे मैं तेरे पास से न जाऊँगा, तो सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना, तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा। और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। जब तू उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने दे, तब उसे छोड़ देना, तुझको कठिन न जान पड़े, क्योंकि उसने 6 वर्ष 2 मजदूरों के बराबर तेरी सेवा की है। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में तुझको आशीष देगा। पहलौठे पशुओं का अपंग, तेरी गायों और भेड़ बकरियों के जितने पहलौठे नर हो, उन सबों को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र रखना। अपनी गायों के पहलौठों से कोई काम न लेना, और न अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे का ऊन कतरना। उस स्थान पर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, तो यहोवा के सामने अपने अपने घराने समेत प्रति वर्ष मांस खाना। परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो, अर्थात वह लंगड़ा या अंधा हो, या उसमें किसी और ही प्रकार की बुराई का दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि न करना। उसको अपने फाटकों के भीतर खाना। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य जैसे चिकारे और हरिन का मांस खाते हैं, वैसे ही उसका भी खा सकेंगे, परंतु उसका लहू न खाना। उसे जल के समान भूमि पर उंडेल देना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए और हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लाने के लिए ये वचनों का परमेश्वर हमें सामर्थ्य दिया। आपको धन्यवाद करते हैं। हमें परमेश्वर पिता फिट एंड फिक्स करते रहिए वचनों के द्वारा, हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आते रहिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हम 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान देखेंगे, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। रोमन्स 1 चैप्टर 1 वर्स से 12 वर्स, सैम्स 85 चैप्टर 86 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 1 वचन से 12 वचन, भजन संहिता 85 अध्याय और 86 अध्याय। हम 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान व्यक्तिगत समय में अपने पर्सनल टाइम में पढ़ेंगे। जब हम अपने व्यक्तिगत समय में पर्सनल टाइम में इसे पढ़ रहे होते हैं, तो हमने इन वचनों को हमारे लिए परमेश्वर जो अगुवाई देता है, जो प्रकार से हमें सुधार लाना चाहता है, उनको हम स्वीकार कर सके, ऐसा अनुग्रह हम प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं सभीयों ने अकेले में बैठकर इसे पढ़ना है व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में, परंतु आप जैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है वैसे आप पढ़ सकते हैं। निश्चित यही करना है। परमेश्वर के आत्मा ने हमको वचन सिखाना है और हमने परमेश्वर के आत्मा ही का लाभ लेना है।
प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा सामर्थ, तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा है। ये हमने रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पढ़ा। हमें परमेश्वर अनंत काल का जीवन का ध्यान हमारे अंदर रखने के लिए सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है खुदा परमेश्वर, उस आगमन के लिए हमें फिट एंड फिक्स कर। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।